वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू ओवर क्वेश्चन सीरीज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कंटिन्यू with the first question of the video, that is, if an object is moving with velocity 54 km per hour, what will be its velocity in meter per second and in kilometer per minute? So simply you know that if we want to convert kilometer per hour into meter per second, then what you need to do, you need to multiply by 5 by 18. And if we want to convert meter per second into kilometer per hour, then you have to multiply it by 18 divided by 5. So first part can be easily answered, right? Velocity is given to you how much? 54 kilometer per hour. That will be equals to 54 multiplied by 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. सो आप उसे सिंपली 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे. देन 18 वन ज़ा 18 एंड 18 थ्री ज़ा 54. सो 54 सॉरी, देन वट यू विल डू बेटा, 18 थ्री ज़ा 54. सो 3 into 5 that will give you how much? 15 meter per second. So that means 54 kilometer per hour is equals to 15 meter per second, right? So first part is done. We have done our first part. Now come to second part now. So kilometer per minute you have to convert, right? So किलोमीटर में वो ऑलरेडी है ही आपकी, आप आवर को बस मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है. सो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, you have to convert the speed into kilometer per or velocity into kilometer per minute. Okay, so you are given already 54 kilometer per hour is already given to you, so you don't need to convert kilometer. So leave kilometer as it is, divided by hour. I can write it like this. And how many minutes are there in 1 hour? It is having 60 minutes, right? So if I want to convert hour into minute, what I will do, I will multiply it by 60. So 54 kilometer per hour can be written as 54 kilometer divided by 60 minutes, right? Now you can divide it. Divide it by 6. 6 nines are 54 and 6 ones are, or 6 tens are 60, you can say. So it will come out how much? 0.9 kilometer per minute, right? So second part is also solved now. So both the parts are solved. So for second part you are getting answer 0.9, and for first part you are getting 15, right? For that the answer is 15. I hope this question is clear to everyone. Now let's move to the next question. Question number 2. What is it saying? It is saying the average velocity of Ram over a given duration is 12 meter per second. That means आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी दी हुई है. एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज लाइक दिस, V average is equals to 12 meter per second. It is given if it travels the first half, यानी कि जो आधा टाइम है टोटल टाइम का, उसने किससे ट्रैवल करा है, x मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. और सेकेंड हाफ भी उसने किस वेलोसिटी से ट्रैवल करा है, 2x मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. सो फर्स्ट हाफ के लिए आपको स्पीड कितनी दी हुई है, फॉर फर्स्ट हाफ speed is given to you x meter per second. for second half, मान लो अगर आपको 1 घंटा टोटल टाइम है तो आधा घंटा उसने x मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा और बाकी का आधा घंटा उसने 2x मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा है,
ठीक है, यानी कि टाइम जो दोनों में है बराबर है। यहाँ पर भी अगर मान लो उसने टी टाइम लिया है तो यहाँ भी उसने टी टाइम लिया है। ठीक है, सो आपके पास एवरेज स्पीड का आपको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम taken, right? That's the formula of average speed. So total time, that will be t plus t, 2t. Total distance you have to calculate, right? So distance आप निकाल सकते हो। मान लो आपका जो फर्स्ट हाफ है उसमें इसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल करा है और सेकंड हाफ में इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल करा है। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, सर टोटल डिस्टेंस आप ये लगा लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है आपके पास स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। सो x1 डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो x स्पीड से और टाइम कितना ले रहा है, t ले रहा है। सिमिलरली x2 डिस्टेंस को किससे कवर कर रहा है, 2x स्पीड से कवर कर रहा है, टाइम उसमें भी उसने t लिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, राइट, xt प्लस 2xt। सो कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3xt, राइट। अब पुट कर दो आप इस फॉर्मूले में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी दी आपको, 12 दी है, 12 भी दी है ना, आई थिंक इट इज़ यस 12 भी दी है आपको। टोटल डिस्टेंस कितना निकला आपका, 3x इंटू टी निकला है। टोटल टाइम कितना लिया आपने, 2t लिया है, तो t से t कैंसिल आपका। सो x कितना आया आपके पास, 2 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, so x is coming out how much, 8, clear। सो फर्स्ट हाफ उसने 8 मीटर पर सेकंड से कवर करा है, सेकंड हाफ उसने किससे कवर करा है, सेकंड हाफ कवर करा है उसने 2x है ना, तो 2 इंटू 8 16 मीटर पर सेकंड से कवर करा है। ठीक है, और अगर आप चेक करना चाहते हो अपना आंसर तो हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। v1 आपको कितना दिया है x, v2 कितना दिया है 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हुआ 3x बाय 2, और v एवरेज कितना दिया हुआ है 12, सो 12 इज इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से भी आपका x कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, सो आपका आंसर करेक्ट है, आपने जो 8 निकाला है x इक्वल्स टू 8, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, what it is saying, a motorist is moving with a constant speed of 45 km/h, स्पीड की हुई है बेटा, वेलोसिटी नहीं दी। how much distance will be covered by him in this। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अभी बताया था आपको लास्ट स्लाइड में, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सारे न्यूमेरिकल्स हम जनरली कांस्टेंट स्पीड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है फॉर 1 मिनट। सो 1 मिनट को आप क्या करोगे, आवर में कन्वर्ट करो। आवर में कन्वर्ट कैसे करोगे, उसे 60 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पीड है और टाइम दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1/60 आवर, मल्टीप्लाई कर दो आंसर, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आएगा 45 डिवाइडेड बाय
60 किलोमीटर। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है आपको, सिंपल, उसमें कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। इन 1 आवर आपको कैलकुलेट करना है, इन 1 आवर, ठीक है। सो इन 1 आवर में आप क्या करोगे, सिंपल वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपको ऑलरेडी 45 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, गिवन है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 आवर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या करना है, सॉरी, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इन 1 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करती है डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, 1 सेकेंड में। सो आप क्या करोगे, पहले सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर दो। तो थर्ड पार्ट में किस में कैलकुलेट करना है, 1 सेकेंड में। आवर में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उससे ईजी हो जाएगी। सेकेंड को अगर आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 3600 से डिवाइड कर दोगे। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय 1/3600 आर। सिंपल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 45 डिवाइडेड बाय 3600 किलोमीटर्स। कैलकुलेशन कर लोगे बाकी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एनी डाउट? If there is any, just let me know. Let's move to the next question. Question number 4. An artificial satellite is moving uniformly in a circular orbit of radius. So आपको radius दी हुई है, ठीक है, ये आपकी radius है. Find its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. That means अगर वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 24 आवर्स ले रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। सिंपल, आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, अब आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, वो पाथ कैसा है आपका, सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको क्या दी हुई है, 42250 किलोमीटर दी हुई है। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, राइट। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। क्लियर। तो 2πr है आपके पास, r आपको दिया हुआ है इतना, सो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। r रेडियस दिया हुआ है आपको 42250, सो इतना किलोमीटर आ गया आपका डिस्टेंस। क्लियर। टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो टाइम इज़ ऑलरेडी गिवन 24 आवर्स, राइट। सो आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, उसी फॉर्मूले से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो वो ये आ जाती है। तो स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। सो डिस्टेंस कितना है आपके पास, आप ये निकाल लोगे, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 2 इंटू 3.14 कितना हुआ, 2 4 8। So this will be the and multiply by 42250 divided by time. टाइम कितना है, 24 आवर्स। क्लियर। अब आपको बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करो इसे। ओके, नाउ यू कैन डू रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। व्हेन यू विल सॉल्व इट इन किलोमीटर पर आवर, योर आंसर विल नॉट मैच विद द ऑप्शन। सो व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट द स्पीड इनटू किलोमीटर पर सेकेंड and then you will get C as the answer, 3.07 kilometer per second. That is the answer of this question. If we are not able to do the calculation, just let me know, I will let you know about this. Clear? Okay, then let's move to the next question. Question number 5. A person travels along a straight road for first half length with a constant speed v1 and second हाफ लेंथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v2, स्मॉल v2 है वो यहाँ पे। एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन आपको निकालनी है, ठीक है। सो आपके पास मान लो टोटल डिस्टेंस x है। क्लियर। लेट्स से टोटल डिस्टेंस इज x, ये पूरा डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है। इसका फर्स्ट हाफ आप कैसे कवर कर रहे हो, v1 स्पीड से। मान लो ये डिस्टेंस आपका x/2 है,
सो ये भी कितना बचेगा डिस्टेंस, x/2 ही बचेगा। सो ये वाला फर्स्ट हाफ आपने v1 स्पीड से कवर करा है, दूसरा वाला फर्स्ट हाफ आपने v2 एवरेज स्पीड से कवर करा है, सॉरी v2 स्पीड से कवर करा है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, नॉट द वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट। सो टोटल डिस्टेंस divided by total time taken, that's the formula of the average speed. So total distance, you know, x, right? Total distance here is x, so we will just put x over here. Then let's say t1 and t2 are the time. Okay, to cover first half t1 is the time, and to cover second half t2 is the time. So total time will be equals to what, t1 plus t2, right? Now you can find t1 and t2. So you know that distance is equals to speed into time. Last काफ़ी स्लाइड से हम यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। Just a minute. So distance is equals to स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ के लिए आपका डिस्टेंस कितना हो गया, x/2, स्पीड कितनी दी हुई है आपको v1, और टाइम कितना है t1। तो यहाँ से आपका t1 निकल जाएगा। तो t1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x/2 v1। सिमिलरली जब आप t2 फाइंड आउट करोगे वो भी इतना ही आएगा, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 v1 की जगह v2 हो जाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। पुट कर दो यहाँ पर। तो v एवरेज कितना हो गया आपका, x डिवाइडेड बाय t1 कितना निकला, x डिवाइडेड बाय 2v1, राइट। t2 कितना निकला, x डिवाइडेड बाय 2v2। सो x कॉमन ले लो, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1/2v1, x कॉमन ले लिया ना, प्लस 1/2v2। अब यहाँ से आप 1/2 भी कॉमन ले सकते हो। तो 1/2 जब कॉमन लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा आपका, नीचे क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2, राइट। आप 1/v1 प्लस 1/v2 को सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर। सो v एवरेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2, एलसीएम लेगो तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू v2, हेयर व्हाट विल बी लेफ्ट, v2 प्लस v1। आप अगेन जैसे 2 ऊपर गया था न्यूमरेटर में, सिमिलरली v1 v2 भी चला जाएगा। ओ दैट विल बी इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. Is that clear to everyone? So this is the answer of this question. So 2v1 v2 by v1 plus v2. So which option is matching? Option number B is the correct option. Clear? I hope this is clear to everyone. So let's move to the next question. Question number 6. So what question number 6 is saying? Let's see. Choose the correct statement. You have to choose the correct statement. Which statement is correct? The average speed is always equal to average velocity. That is never ये कब possible होता है, only for straight line motion में possible होता है, हमेशा possible नहीं होता। तो ये statement हमारी wrong है, ठीक है। Second statement read करो क्या है, The magnitude of average velocity is always less than or equal to average speed. ये आपकी करेक्ट है। जैसे आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आती है ना, सिमिलरली जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या आ रहा था, ईदर इट इज़ लेस देन और इट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम रिलेशन होल्ड करता है। आपकी जो वेलोसिटी है, either that will be less than or equal to the speed. Equal कब होगा, when your object is moving along the straight line path. So option number B is the correct option. Clear?
Now let's move to the next question. Question number 7. What it is saying? It's an interesting question. A train 50 meter long passes over a bridge at a speed of 30 kilometer per hour. If it takes 36 seconds to cross the bridge, the length of the bridge will be. ठीक है, सो जो पूछा है उसे पहले एज्यूम कर लेते हैं. मान लो आपकी जो ब्रिज की लेंथ है वो क्या है, x है. ठीक है, x इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज. सो लेट्स से दिस इज़ अ ब्रिज हेयर. क्लियर. इसकी टोटल लेंथ आपको कितनी दी हुई है बेटा, x दी हुई है. और इस पर एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है. मान लो एक ट्रेन है इस तरीके से. ठीक है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है. उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 50 मीटर. सो अगर इस ट्रेन को ध्यान से देखो, इस ब्रिज को पार करना है, क्रॉस करना है, तो क्या होगा, अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तो ये कवर करेगी ही करेगी. ठीक है, प्लस x डिस्टेंस ऑलरेडी है वो भी ट्रैवल कर रही है. वो x यानी कि ब्रिज की जो लेंथ है उसको भी कवर कर रही है और अपनी लेंथ है उसको भी कवर कर रही है. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा आपका जो ट्रेन है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 तो अपनी लेंथ है ही उसकी. ठीक है, इतना तो वो कवर करेगी. अगर इंजन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना है तो 50 मीटर तो वो कवर करेगा ही, प्लस x जो ब्रिज की लेंथ है वो भी कवर करेगी. ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, 36 सेकंड दिए हुए हैं. इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है. ठीक है, और आपको स्पीड कितनी दी हुई है, v लिख लेते हैं उसको, 30 किलोमीटर पर आवर. आपको टाइम दिया हुआ है सेकंड में, वेलोसिटी या स्पीड दी हुई है आपको किस में, किलोमीटर पर आवर. तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. सो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसको सिंपली इसको ऐसे आप 6 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो इसको. तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 एंड 6 5 30. सो यू विल गेट हाउ मच, 25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स कंटिन्यू. आपके पास फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले के ऊपर हम सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. इस फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. क्लियर. सो डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करा है, 50 प्लस x कवर करा है. स्पीड कितनी है, 25/3 अभी हमने कैलकुलेट करी है मीटर पर सेकेंड में. टाइम कितना लगा है, 36 सेकेंड लगे हैं. ठीक है, 3 से 36 डिवाइड हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स. क्लियर. अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हुआ, 300 आएगा ना बेटा. तो 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 300. सो आपसे ट्रेन ब्रिज है उसकी लेंथ पूछी थी, वो क्या है, x. सो x विल बी इक्वल्स टू 50 को दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर्स. राइट. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. 250 meters is the correct option. Now let's move to the next question. Question number 8. A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meters away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after how many time? How much time it will fall into the pit? Drunkard, एक आपको drunkard दिया हुआ है बेटा. ठीक है, so वो 5 स्टेप्स आगे लेता है और 3 स्टेप पीछे लेता है.
एक स्टेप में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपके पास अगर हम मान लेते हैं और एक स्टेप को कवर करने में 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है। सो मान लो 5 टाइम्स वो आगे गया, 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप्स उसने आगे लिए तो 5 मीटर कवर करा, ठीक है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में, क्योंकि 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है बेटा, 1 मीटर के लिए 1 सेकंड ले रहा है तो 5 मीटर के लिए 5 सेकंड होगा। और 3 मीटर वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में होगा, वो 3 सेकंड्स में होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर हुआ, कितने टाइम में, 8 सेकंड में, ठीक है। समझ आई बात सबको। तो 2 मीटर डिस्टेंस आपका ट्रेवल हो जाएगा 8 सेकंड में। अब आप देखो 11 मीटर यानी कि 8 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है, आफ्टर 8 सेकंड। और ये स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर अवे एक पिट है, एक गड्ढा है, ठीक है, जिसमें वो गिर जाएगा। तो आप देखो 8 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर करा है, तो 16 सेकंड में कितना कवर करेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 मीटर कवर कर लेगा। एंड 24 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, बताओ। इसमें और ऐड कर दो 8, सॉरी इसमें 6 मीटर कवर कर लेगा आपका, 2 ऐड करोगे, ठीक है। सो 6 मीटर के बाद आपको अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है बेटा। पहला स्टेप क्या होगा उसका, 6 मीटर के बाद वो 5 स्टेप्स आगे जाएगा, फिर वो 3 स्टेप्स पीछे जाएगा, ठीक है। अगर उसने 5 स्टेप्स आगे लिए यानी कि वो 5 मीटर आगे चला गया, ठीक है, 5 मीटर आगे चला गया, 5 मीटर आगे चला गया, तो 6 में 5 ऐड करो 11 हो जाएगा, तो वो तो पिट में गिर जाएगा, राइट। और एक स्टेप को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, तो इसको कवर करने में कितना लेगा, 5 सेकंड लेगा। 6 मीटर को कवर करने के लिए वो 24 सेकंड ऑलरेडी ले चुका है, और 5 मीटर यानी कि पिट में गिरने के लिए उसने 5 सेकंड्स लिए। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 24 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 29 सेकंड। So what will be the answer of this question? 29 second is the answer. Clear? Now let's move to the next question. Question number 9. An object travels 10 meter in 4 second and next 10 meter in 4 second. What is the average speed? Simple question है बेटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो वी एवरेज विल कम आउट टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 + 10 कितना हुआ, 20। टोटल टाइम कितना हुआ, 4 + 4 8। सो 20 को 8 से डिवाइड करो, सो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 2 और 4। सो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 2 ज़ा 8, राइट। 2 बचेगा आपके पास, 2.5 आई थिंक आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन स्विम्स इन ए पूल ऑफ विड्थ 100 मीटर, ठीक है। एक पूल है आपके पास, मान लो आपके पास एक पूल दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक पूल है जिसकी विड्थ आपको कितनी दी है, 100 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। सो ही कवर्स 200 मीटर इन 10 मिनट्स, 200 मीटर इन 10 मिनट्स बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। मान लो उसने ए पॉइंट से स्टार्ट करा, तो वो वन एंड से यानी कि इस एंड से स्टार्ट कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बी पॉइंट तक पहुंचने में 100 मीटर। अब वापस जब वो बी से ए पे आएगा, फिर वापस 100 डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 200 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो पहले आपके पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने में भी 10 मिनट लगे उसे और आने में भी 10 मिनट लगेंगे, सॉरी पूरा 200 मीटर का दिया हुआ है आपको, सो केवल 10 मिनट्स ही हैं। तो 10 मिनट्स में आपका पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो 10 मिनट्स लिए हैं, टोटल टाइम कितना लिया है उसने, 10 मिनट्स लिए। टोटल डिस्टेंस आपका 200 मीटर है और टोटल टाइम कितना है, 10 मिनट्स है। सो 10 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड्स हो जाएंगे, राइट।
तो कर दो आप सॉल्व, सिंपल। क्या बचा इसमें, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 200, टोटल टाइम कितना है 600, डिवाइड कर दो, सिंपल। 1/3 विल बी द आंसर फॉर द स्पीड, 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है बेटा, उसने ए से चलना स्टार्ट करा था, ए से चलना स्टार्ट करा और वापस ए पर आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इस केस में, बताओ। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इस केस में। डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो that's all for today. Your homework is again to practice numericals from chapter motion as much as you can. If you are not able to solve, just let me know, we will solve those questions in the class. Okay, till then, have a good day everyone. Thank you for watching. Keep practicing as exams are approaching.